आर्थिक राजधानी मुंबई के समुद्री तट से नौसेना बेड़े में शामिल हुआ करंज पनडुब्बी। नौसेना को मिली दुनिया की सबसे आधुनिक करंज पनडुब्बी। देश की सुरक्षा के लिहाज से बुधवार का दिन बहुत ही अहम माना जा रहा है। आज स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन INS करंज नौसेना के बेड़े में शामिल हो गई। यह कार्यक्रम मुंबई के समुद्र के किनारे पर संपन्न हुआ। इससे देश की समुद्री ताकत कई गुना बढ़ गई। INS करंज को साइलेंट किलर कहा जा रहा है। यह बिना किसी आहट के दुश्मन खेमे में पहुंचकर तबाह करने की क्षमता रखता है। INS करंज करीब 70 मीटर लंबी, 12 मीटर ऊंची और 1565 टन वजनी है। INS करंज मिसाइल और टॉर्पीडो से लैस है और समुद्र में माइंस बिछाने में सक्षम है। करीब 350 मीटर गहरे समुद्र में INS करंज को तैनात किया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि रडार की पकड़ में नहीं आते हुए जमीन पर हमला करना। इसमें ऑक्सीजन बनाने की क्षमता है, जिससे यह लंबे समय तक पानी में रह सकती है। Morning and so very nice to see all of you. Thank you for coming and attending this ceremony. It means a lot to us. You are aware of the Project 75. This is the third तीसरी submarine है which has been commissioned. The fourth one, Vela, is going through her sea trials. We have launched the fifth one, and we are then thereafter going to go for the sixth one. So all 6 submarines of the P-75 now, in a series manner, they will keep getting commissioned. So very nice of you all to come here, and I am open to any questions. I'll not be as frank as because he's a retired man. I am a serving. So today I'm Jumaya Deshpande from CNN News 18. Today is being hailed as a big day for Atmanirbhar Bharat. What are the challenges you see now that such indigenously made boats are coming out? Apart from assembling, are there any other things in which we feel able to progress, and how are the challenges coming forward? See, when we look at indigenization, we break them into 3 components. The float component, the move component, and the fight component. So as far as the float component is concerned, which is we've got our indigenous steel, we have our indigenous design, we've got pipelines, walls, etc. We have reached above 90%. So we are pretty satisfied with the float component. In the move component, some of the propulsion system integration, the diesel engines, the steam engines, we have indigenized completely. It is the gas turbines and the future electric propulsion that we are looking at. And most importantly is the fight component. Fight component, we still have some way to go. So we have a game plan, and under the Prime Minister's clarion call for Atmanirbharta, we are really moving quickly on that. We have realized that there is a lot of headroom for private industry, and we are leveraging this and trying to get much more self-reliance. So in the coming years, you will see a lot of movement, especially in the fight component. And we have something called the Naval Indigenization and Innovation Organization, which is set up, which will go out into the field, into the industry, to the academia, and plan how we want to move ahead on this front of the fight. So I see a bright future in this indigenization. So good morning. Amit Joshi from D2 News Channel. So before that, I must introduce our new CNC, Vice Admiral Hari Kumar. He's just taken over. He's very experienced. He was the fleet commander here. He was the chief of staff in West. So I wish him all the very best. Yeah. 3 सवाल है इस ओकेजन के ऊपर। एक पूछे अच्छा वाला। काफी मुश्किल है सर, आप इतने सालों से बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं। 3 सवाल है। एक INS करंज के बारे में आप वापस क्या दोहराएंगे, किस तरह की ये टेक्नोलॉजी है, क्योंकि पहले 2 हमने फ्रेंच के साथ कॉपरेट करके किया था, ये पूरी तरह से इंडिजिनस है, तो इसके बारे में क्या करेंगे। दूसरा सवाल है कि कलवरी की 6 लाइन तो पूरी 6 पनडुब्बी तो पूरी हो रही है, आगे की लाइन के बारे में आप क्या कहेंगे। और तीसरा सवाल, INS चक्रों को तो 10 साल अभी रशिया से लीड होते हुए पूरे हो रहे हैं, INS चक्र के बारे में आगे क्या डेवलपमेंट। जो प्रोजेक्ट 75 है, जब 6 सबमरीन खत्म होगी, हमारा आपको पता है एक 30 ईयर सबमरीन कंस्ट्रक्शन प्लान जो CCS ने क्लियर किया था, तो उसके अंतर्गत नेक्स्ट हमारा जो है 75 इंडिया है। जो प्रोजेक्ट 75 इंडिया है, उसमें जो अभी आत्मनिर्भर कंपोनेंट है, इसमें उससे बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मेन रीज़न था कि एक
हम बिल्कुल फोकस्ड मैनर में इंडिजिनाइजेशन को लेंगे। ये कई बार क्या होता है कि बिल्ड टू प्रिंट हमको नो हाउ मिलता है फॉरेन ओईएम से। अभी हमारा प्लान होगा कि बिल्ड टू स्पेक्स हम बनाएंगे, इससे हमारी आत्मनिर्भरता और बढ़ेगी। तो जो हमारा जो 6 फॉलो-ऑन 75 इंडिया है उसका हमारे को A1 मिल चुका है। तो अभी फाइनलाइज कर रहे हैं हम जो ओईएम है और स्ट्रेटेजिक पार्टनर है उन दोनों को मिला के। तो हमारा प्लान है कि RFP जल्दी हम इशू करें। दूसरे क्वेश्चन में आंसर नहीं करेंगे। Will the last 2 votes be armed very limited proportion system? DRDO recently tested it and it was reported to be successful. And if the last 2 votes will have an AIP, will there be structural changes? Will the votes be download document system? And the second question, what I'll do is IC2, sir. IC2. So I'll answer the first one. The AIP, as you rightly said, has been the trials, the power trials have just been completed. It came out in the news yesterday, I think. We are very happy about that because the 75 was built to incorporate the AIP plug. So what we are doing is we are moving forward with the AIP, and by the DRDO's own assessment, the 2023 में ये AIP plug ready हो जाएगा। So what our plan is, जब पहली जो बोट रिफिट के लिए जाएगी उस टाइम हम ये AIP प्लग लगाएंगे, और जब AIP प्लग लगाएंगे तो हमारा अंदाज़ा है कि जो अभी जो सबमरीन की अंडर वाटर रहने की क्षमता है, क्योंकि अब उसको जो कन्वेंशनल सबमरीन है दे हैव टू कीप कमिंग अप फॉर बैटरी चार्जिंग, एंड दैट वी कॉल एज द इंडिस्क्रेशन रेट। तो इसकी जो इंडिस्क्रेशन रेट और कम हो जाएगी और इट विल बी सीन अप विद द पेरिस्कोप फॉर मच लेसर टाइम। थैंक यू। सर, शिवांगी ठाकुर फ्रॉम TV9। पहला सवाल यही कि सर कोविड की वजह से हम देख रहे थे कि सब कुछ बंद हो गया था, तो क्या कोविड की वजह से कमिश्निंग में देरी हुई है या तय समय से ही ये कमिश्निंग की जा रही है? कोविड ने डिलेज कराए हैं बिकॉज ऑफ, आपको पता है कि हमारा महाराष्ट्र हैज बीन ऑलमोस्ट वर्स्ट अफेक्टेड, पर आई मस्ट गिव इट टू MDL कि उन्होंने बहुत जोर लगाया, got the workers back, and the delays have been there, but they have been very minimal. And I must congratulate MDL for pushing out this boat. I must congratulate everybody involved, क्योंकि इनको सेल करना also during COVID time is not easy. एक आदमी को कोविड होगा तो in a small place like submarines you don't have any social distancing or anything. So I think it is very creditable for the MDL, the NG and the Navy that we've been able to commission this boat. जो मौजूदा स्थिति है, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना और हमारे 3 साइड से सी बॉर्डर है, मौजूदा स्थिति में हम अपने आप को कहाँ रखते हैं? एक तरफ चाइना से बॉर्डर डिस्प्यूट है, पाकिस्तान हमारा नजर रखता है, तो हमारी कितनी स्ट्रेंथ है और सबमरीन की रिक्वायरमेंट जो हमारी ज़्यादा है उसकी तुलना में अभी हम 16 में पहुंचे, तो इससे किस तरह से देखते हैं हमारे पास कितना एडवांटेज है? देखो, only way to keep any adversary at bay is to be combat capable. तो ये हमारा जोर है। जो भी हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं, इक्विपमेंट हैं, हम उसको कम्प्लीटली 100% वॉर वर्दी, कॉम्बैट वर्दी रखना चाहते हैं। हमारे जो क्रू हैं उनको 100% सक्षम रखना चाहते हैं एंड ट्रेन, वेल ट्रेन। दैट इज द ओनली आंसर टू प्रोटेक्ट और लार्ज यू सीन द इंडियन ओशन रीजन। उसमें 20 जो साइज है उसमें 20 इंडियन लैंडमार्क डाल सकते हैं, इतना बड़ा हमारा एरिया है। तो इसके लिए ओनली आंसर इज टू रिमेन कॉम्बैट केपेबल and keep our training up to the mark. As far as the submarines are concerned, आपको अब ये प्रोजेक्ट 75 है, 75 इंडिया क्लियर होगा, तो थोड़ा जो गैप हो गया था इन द नंबर ऑफ सबमरीन्स, हमने जो MRLC बोलते हैं, मीडियम रिफिट लाइफ सर्टिफिकेशन, 4 हमारे जो पनडुब्बियां का कराया है, और अभी 2 SSKs हमारी जर्मन डिजाइन पर बिल्ट इन MDL, उनका भी हम MRLC कर रहे हैं। तो उससे 10-15 साल और भी लाइफ हो जाएगी।
तो इस तरह हम ओवरकम करेंगे इंशाल्लाह। सर एक क्वेश्चन आपने पूछ लिया ऑलरेडी, यू ऑलरेडी क्वेश्चन इफ यू परमिट प्रिंट मीडिया। मैं चिंतक आया हूँ महाराष्ट्र टाइम्स से। सर अभी रिसेंटली जो टॉपिक और सी हुआ था उसका एग्जैक्टली आउटकम क्या बोल सकते हैं एज फार एज डोमिनेंस कंसर्न इन इंडियन ओशन रीजन? जो एम होता है नेक्स्ट सी विजिल का एम होता है कि कोस्टल सिक्योरिटी। तो हमने ये दूसरी सी विजिल थी। पहले क्या होता था, हम स्टेट वाइज करते थे कोस्टल सिक्योरिटी, और फिर हमने कोस्ट वाइज शुरू कर दिया, वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट। और ये जो सी विजिल था, इसमें हमने डिसाइड किया कि पूरा हिंदुस्तान इंक्लूडिंग द आइलैंड टेरिटरीज, ऑल स्टेक होल्डर्स विल गेट इन्वॉल्व इन दिस एक्सरसाइज। तो इससे पता लगता है कि अगर कोई थ्रेट होगा हमारे जो लो इंटेंसिटी या टेररिस्ट थ्रेट होगा, उसको कैसे संभालना है। तो दैट इज सी विजिल। एज फार एज द अदर एक्सरसाइज आर कंसर्न, हमारा ये एम रहता है कि वी कीप वॉचिंग हाउ इज वॉरफेयर इवॉल्विंग। अभी जैसे आप चाइना को देखिए, चाइना हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच टू वॉरफेयर। So we have to look at all this and adjust our operational thinking and tactical planning based on the future warfare. तो ये हम करते हैं। उसमें हमने ये वॉर गेम किया है और हमने लेसन लर्न किया। सर वन क्वेश्चन तो चाइना को लेकर जो पिछले 1-2 साल में काफी ज्यादा टेंस है इंडिया और चाइना के बीच में। हालांकि हम लोग हमेशा प्रिपेयर रहते हैं, नेवी भी प्रिपेयर रहती है, लेकिन और कितने प्रिपरेशन की जरूरत है हम लोगों को? चाइना बहुत एग्रेसिव हो जाता है कभी कभी, अपने सबमरीन अपने शिप बहुत बॉर्डर तक पहुंच जाते थे। So I want to assure you that we are watching China very carefully and we will do whatever is required to protect our maritime interests. Thank you. Thank you so much. Thank you very much.